کا ہے عیش لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے عیش لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے یہ مسجدیں جو ہے آباد آج چندوں سے یہ مسجدیں جو ہے آباد آج چندوں سے تیرا کرم سے ہی مولا اثر حسین کا ہے تیرا کرم سے ہی مولا اثر حسین کا ہے ہماری صبح کا نام علی سے ہے آباد ہماری صبح کا نام علی سے ہے آباد پھر اس کے بعد ہر ایک پہر حسین کا ہے پھر اس کے بعد ہر ایک پہر حسین کا ہے اور تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے قائم تھا تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے قائم تھا اب آپ ہی دیکھیے سارا نگر حسین کا دیکھیے سارا نگر حسین کا ہے اور یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے اور یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے یہ خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے وہ جہاں کبھی راحت کرتے ہیں آسمان والے وہ جہاں کبھی راحت کرتے ہیں آسمان والے وہ جس میں تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے اور جس میں تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے انہوں نے پھر بھی محبت سمجھ کے مارا اسے انہوں نے پھر بھی محبت سمجھ کے مارا اسے اگرچہ معلوم تھا بسر حسین کا ہے اگرچہ معلوم تھا بسر حسین کا ہے اور میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے کہ تم ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا کہ تم ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے اور سچ رہی ہے کہ ہم نے کیے یہی تقسیم اور سچ رہی ہے کہ ہم نے کیے یہی تقسیم یہ دل علی کا ہوا اور سر حسین کا ہے یہ دل علی کا ہوا اور سر حسین کا ہے اور میرا پرندہ دل تمہارا مارا کرتا رہے میرا پرندہ دل تمہارا مارا کرتا رہے پلٹ کے آئے گا فرحت اگر حسین کا پلٹ کے آئے گا فرحت اگر حسین کا ہے بہت بلندر سر اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذي
الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد وعلى عزیزان محترم اشرف محترم کرام، یہ چھٹی مجلس رہتا آپ حضرات اداکار مصطفیٰ شامل سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے دین اور وارث دین، جس کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت چند ایک گزارشات عرض کی اور آج بھی چند ایک گزارشات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر رکھا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، پروردگار باقیات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، پروردگار اس خانے کے جتنے بھی متظمین ہیں، جتنے بھی خدمت گزار ہیں، پروردگار ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جہاں گھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف ازا ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اس آبادی میں رہنے والے تمام امید اور مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے، پروردگار اس بشر عذاب کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، زمانے کے امام کو صراط پر مشہور فرمائے، قائم آج محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے آقا کے آباد و انتفاعات میں شمار فرمائے، مجلس کی اور روحوں کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر بابا مطلب صلوات دین اور وارث دین کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا وہ آج اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کی اور آج بھی چند ایک گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر رکھیا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وقت بہت مختصر ہے، لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ چند ایک جملوں جو گزشتہ دنوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا اسے عرض کر دوں تاکہ جو صاحبان مسلسل تشریف لا رہے ہیں ایک گفتگو کا تسلسل بھی ہو جائے گا، اور جو صاحبان آج تشریف لائے ہیں ان کے لیے بات واضح بھی ہو جائے گی کہ سلسلہ گفتگو میں کیا کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ دین اور وارث دین کے عنوان پر وارث اور میراث کا تذکرہ کیا اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وارث کیا ہوتا ہے اور میراث کیا ہوتا ہے، اور چونکہ موضوع اس میراث میں کوئی مادی چیز نہیں ہے، اس میں موضوع دین ہے، تو ہماری کوشش یہی تھی کہ دین کو بتایا جائے کہ کیا ہے اور وارث دین بتایا جائے کہ کیا ہے۔ لیکن وارث اور میراث جب بھی کہا جائے گا تو ہمیشہ عام انسان کے ذہن میں میراث کا لفظ آتے ہی مادیات کا تصور زیادہ آتا ہے، روحانیات کا تصور ذرا کم آتا ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وارث ہے تو فوراً سوال کیا جاتا ہے کہ کس چیز کا وارث ہے، کون سا مکان اس کا ہے، کون سی جائیداد اس کی ہے، کون سا بینک بیلنس اس کا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جب بھی وارث یا میراث کا تذکرہ کیا جائے تو وہ مادیات ہی ہو، بلکہ روحانیات میں بھی وارث ہوتا ہے اور روحانیات میں بھی میراث ہوتا ہے۔ تو چونکہ دین کی جب تفصیلات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں تو مادیات آ جاتی ہیں، لیکن خود اصل دین کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ آپ نے دین کہیں سے خرید لیا، آپ نے کہیں سے دین لے کر جیب میں رکھ لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا عزیزان محترم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت اور مادیت میں بہت واضح سا فرق ہے۔ توجہ فرمائیں حضرات،
बहुत वाज़ेह सफर, और वो वाज़ेह सफर की है कि रूहानियत की ताकत से मादियात को तो खरीदा जा सकता है, मगर मादियात की ताकत से रूहानियत को नहीं खरीदा जा सकता। ऐसा ही है। और उसका एक बहुत बड़ा अमली नमूना हमारे पास मौजूद है करबला की सूरत, कि करबला में एक तरफ मादियात मसरूफ थी, बेतहाशा मादियात मसरूफ थी, ख्वाहिशात मसरूफ थी, बेतहाशा पैसा बहाया गया, लोगों को लालच दी गई कि जो जितने जख्म मारेगा, जो जितना ज़्यादा जुल्म ढाएगा, उसे उतना ही ज़्यादा इनामात से नवाजा भी जाए। लोग इसी इनाम की लालच में भी करबला आ गए, और करबला में जो जुल्म और सितम की दास्तान आप मसाइब में सुनते हैं, तो सब कुछ जहाँ दुश्मनी है मोहम्मद और आले मोहम्मद में, वहाँ मादियात का भी बहुत ज़्यादा दखल है। लेकिन करबला ने बताया, तवज्जो है बताती, लेकिन करबला ने बताया कि कभी भी मादियात रूहानियत पर हावी नहीं हो सकती। और कल की तकरीर आपके ज़हन में महफूज हो तो बात को वहाँ से आगे बढ़ा देंगे कि कभी भी मादियत रूहानियत पर हावी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि फला जगह हमने देखा कि कोई रूहानियत का दावेदार है, मगर मादियात उसके ऊपर हावी है, तो यकीन कर लीजिएगा कि उसके पास रूहानियत नहीं है। रूहानियत का लिबास होगा तो एक अलग बात है। रूहानियत के लिबास में अंदर मादियात ही होगी, रूहानियत नहीं होगी। तारीख इस बात की गवाह है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, आप हजरात में से किस चीज़ की नज़र से तारीख गुजरी है, जानते तो लगे तवज्जो सिर्फ नजर पड़ती सलाम करने की एक बार तो तारीख इस बात की गवाह है कि लिबादा तो इस्लाम का था, मगर काम भरपूर मादियात के। लोग समझते थे कि इससे ज्यादा बड़ा दीनदार कोई नहीं हो सकता। ये मुनाफिकत। और बच्चे शायद मुतवज्जो हो जाएंगे कि मैं किसके लिए ये जुमले कह रहा हूँ, कि जब लोगों ने शिकवा किया वाला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि मौला उसके अंदर तो ऐसे ऐसे मामलात, वो तो आपके लिए ये सब कुछ करता फिरता है, अगर आप उसका जवाब उस अंदाज से नहीं दे पाते, नहीं देते, तो मौला ने फरमाया कि वो जो कुछ करता है वो सियासत नहीं है। सियासत वही है जो हम कर रहे हैं, हमें वो काम नहीं आते जो वो करता है। कल एक मुद्दा की जरूरत कर दिया था कि दीन असल सियासत है। सियासत और दीन की कोई दो जुदा चीजें नहीं है। अलबत्ता वो सियासत नहीं जो हमारे यहाँ मारूफ है, वो सियासत पता नहीं क्या है वो, लेकिन हम उस सियासत की बात कर रहे हैं जो खुदा की सियासत है, जो अंबिया की सियासत है, जो आइम्मा की सियासत है। मासूम ने बताया कि वो सियासत जो वो करता है वो सियासत नहीं है। सियासत वही है जो हम कर रहे हैं, और जो वो कर रहा है वो हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते। वरना अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने इख्तियारात को अगर इस्तेमाल करूँ तो मुझे सियासत करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। तो काम वाला किस तरह से, तो आपने वहीं से इस तरह से हाथ बढ़ाकर जिस तरह से खींचा और लोगों के सामने हाथ को किया, तो कहा ये क्या है, कहीं तो बाहर है, क्या किसके बाहर है, क्या मालूम नहीं, कहा वो शाम में तख्त पे बैठा हुआ है, मैंने यहाँ से हाथ बढ़ाकर उसकी दाढ़ी को खींच लिया, तो मुझे नहीं बताया। तो अगर मैं इख्तियारात को इस्तेमाल करूँ तो उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। सियासत वही है जो हम कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहा है वो हमें नहीं मालूम कि क्या है। लेकिन अभी
से भी नफसी पहचान। लिबास तो है ही मगर एक मखसूस लिबास है कि जिससे रूहानियत सामने आती। तो लिबास का ताल्लुक रूहानियत से नहीं है। तो जो परवाह आते नहीं, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, बहुत मुख्तसर से गुफ्तगू है। एक पैगामात है और मसाइब है और शहजादे का ताकुल बराबर होगा। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और ज़ियारत करेंगे। जैसे कल आपकी खिदमत में जुमला अर्ज किया था कि मासूम इस मिंबर का मोहताज नहीं है। मासूम मोहताज नहीं है। मिंबर तो मोहताज हो सकता है मासूम का, मगर मासूम मिंबर का मोहताज नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह से मासूम मिंबर का मोहताज नहीं है, इसी तरह से मासूम रूहानियत के लिए इस लिबास का भी मोहताज नहीं है। रूहानियत का ताल्लुक लिबास के साथ नहीं है, बल्कि जो याद रखिएगा बाप आगे बढ़ा रहा हूं। चाहे वो यहूदी के बाद में मजदूरी करे, चाहे वो मस्जिद कुफा के मेहराब में इबादत करे, चाहे वो मैदान जंग में जिहाद करे, चाहे वो रात की तारीख मुंह में मुसल्ला इबादत पर इबादत करे, उसको जरूरत नहीं है कि वो लिबास होगा तो रूहानियत नजर आएगी। यही तो है। रूहानियत क्या है? रूहानियत तो कोई और चीज है कि जब मासूम के घर पर कोई शख्स आया और मुसाफिर है, चाहने वाला है, गुलाम को बुला के पूछा घर पर कुछ खाने को है, तो गुलाम ने इनकार किया, करने वाला है तो मगर इतना नहीं है, मुख्तसर सा है कि एक बंदा खाने इतना है, कचौड़ जितना भी है उतना ही लिया। तब जब हमारे आगे नहीं, जितना है उतना ही लिया। गुलाम मेरा और लेकर आ गया। जैसे ही लाकर रखा दस्तरखान पर खाना, तो छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे ही खाना लाकर रखा, इससे पहले के खाने की इब्तिदा की जाती, मौला ने चराग को बुझा दिया। चराग को बुझा, रूहानियत देखिएगा, चराग को बुझा दिया और अब उससे फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह करो। तो अब उसने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया और खाना खाने लगा। मासूम भी हाथ बढ़ाते थे मगर खाते नहीं थे। मतलब उसको महसूस होता था हाँ इमाम ने भी हाथ को आगे बढ़ाया है, रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया। तो एक मरतबा उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह फरमाते रसूल आपने चराग क्यों बुझवा दिया? तो जानते जवाब क्या दिया? ये रूहानियत है। जानते जवाब क्या दिया? बोला फरमाते चराग को इससे बुझा दिया कि तू मेहमान भी है, मुसाफिर भी है, तू थका हुआ आया है, हो सकता है तुझे भूख ज्यादा लगी हो, मैं मेजबान हूं, हो सकता है तुझे ज्यादा खाते हुए मेरे सामने शर्मिंदगी महसूस हो, मैंने इसलिए चराग को बुझा दिया। मगर हाथ बढ़ाते रहे और जब वो खाना खा चुका तो फिर एक मरतबा चराग को जला दिया। ये उसके वारिस है कि जिसने दावत सुल अशीरा में एक प्याला रोगन, एक गोश्त की रान और चंद रोटियों पर 40 सरदारों को खिला भी दिया था और बचा भी दिया था। दावत सुल अशीरा में याद है, वो नहीं सुना, लेकिन कितने लोग थे? 40। मगर जब 40 आ गए, दस्तरखान सज गया, उसको खाना चुन दिया गया, तो रसूल खुदा ने सबसे पहला लुत्फ लिया। तो उलमा यही बयान करते हैं कि ये रसूल खुदा ने जो उस खाने को हाथ लगाया, ये उसकी बरकत है कि वो इतना ज्यादा हो गया कि 40 लोगों ने, अच्छा ये वो सरकार है तो पूरा ऊँट खा जाते हैं। अच्छा ऊँट तो छोटी चीज है, ये पूरे बाग भी खा जाते हैं, इनकी सेहत पर असर नहीं पड़ता।
دیں. تو مولانا وہاں آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیے وقت روحانیت نہیں ہے، میری مجبوری ہے کہ وہ بار بار اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، ورنہ فقط روحانیت نہیں ہے یہ عزیزان محترم. مسئلہ بالکل مختلف ہے، اور مسئلہ مختلف یہ ہے کہ وہاں کفار ہے، وہاں ان کو اعجاز دکھانا ضروری ہے. شاید یہ اس اعجاز کے ذریعے سے ایمان لے آئے، مگر یہ آنے والا کافر نہیں ہے، یہ تو چاہنے والا ہے. اب اس کو اعجاز دکھا کر اس بات کا اظہار نہیں کرنا کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں. جس کے پاس روحانیت اتنی زیادہ ہے تو وہ چاہے جنت سے بنوا لے، مگر نہ جنت سے آیا نہ کھانا پکوایا، بلکہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا. مگر ہم نے دیکھا جس کو لوگ روحانی سمجھتے تھے اس کے ساتھ کیا ہے، اٹھو بیٹھتا تھا، اونٹ کا بچہ پورا کھاتا تھا. یہ تاریخ ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے اور آپ کو پتا ہے کہ اونٹ کا بچہ کھانے والے کتنے لوگ گزرے، اور مٹکے بھر بھر کے پیتا تھا شراب. یہ کیا ہے؟ یہ مادیت. اور جب باہر نکلتا تھا تو لبادہ اوڑھتا تھا روحانیت کا. نہیں، باہر نکلتا ہے تو لبادہ روحانیت کا ہے، مگر جب گھر کے اندر ہے تو مادیت سے اتنا پر ہے کہ موقع نہیں ہے، اور نہ مناسبت ہے، اور نہ یہ ممبر جو ہے وہ چونکہ ممبر رسول کا ممبر ہے، شبیہ ممبر ہے، تو میں وہاں سے ان ساری باتوں کو بیان کرنا بھی نہیں چاہتا. لیکن اگر ہاں کسی کو تفصیل معلوم نہ ہو تو بعد میں آ جائے، ساری تفصیل بتا سکتا ہوں کہ اس کھانے پینے کے بعد جو کام ہے وہ کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہے. تو اللہ مطلب روحانیت کچھ اور ہے، مگر ہم نے تو یہاں تک آج تک یہی دیکھا کہ روحانیت مادیت میں غالب آ سکتی ہے، مادیت روحانیت میں غالب نہیں آ سکتی. اب ایک بات آپ کے مزاج کی کر دوں، اگر آپ کو لگے کہ ہاں ایسا ہے تو تائید فرما دیجیے گا، اور اگر نہ لگے تو اسی طرح سے خاموش بیٹھے رہ جائیے گا. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ مجلس اعضا مادیت ہے یا روحانیت ہے؟ روحانیت ہے. تو اگر آپ کو کوئی ₹1,00,000 دے کہ محرم میں مجلسوں میں نہ جاؤ، تو مجلسوں میں آؤ گے ₹1,00,000 لے لو گے؟ بولیے تو صحیح. مجلسوں میں آئیں گے، ₹1,00,000 نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روحانیت ہمیشہ مادیت پر حاوی ہوتی ہے. یہ لاکھ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، دنیا نے تو اب خبر بڑھا دی ہے کہ کسی طرح سے آپ کو روک دیں، مگر آپ ہے کہ روکنے والے نہیں ہے. کیوں کہ آپ کے اندر جو روحانیت ہے وہ حسین ابن علی کے صدقے میں ملی ہوئی ہے. توجہ فرمائیں. ایک سلام پر نبی کے محمد اور آل محمد. تو روحانیت کو نہیں خریدا ہے، مادیت جو مادیت میں ڈوبے ہوئے تھے وہ بک رہے تھے، وہ خریدے نہیں جا رہے. اچھا ایک بات آپ کی خدمت پیش کروں، روحانیت کبھی بھی مادیت کی دشمن نہیں ہے. یاد رکھیے گا، روحانیت کبھی بھی مادیت کی دشمن نہیں ہے. اگر روحانیت مادیت کی دشمن ہوتی تو ایمان کبھی کھانا نہیں کھاتے. میں پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا. کبھی کھانا نہیں کھاتے، کبھی باغ میں مزدوری نہیں کرتے. اگر روحانیت مادیت کی دشمن ہوتی تو کبھی بچے عید کے دن رنگ برنگی لباس کی فرمائش نہیں کرتے. روحانیت مادیت کی دشمن نہیں ہے، البتہ مادیت روحانیت کی دشمن ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو معلوم ہے کہ اگر روحانیت آ گئی تو مادیت خود کا خود رخصت ہو جائے گی. تو ایسا کام کرو کہ نہ روحانیت رہے اور نہ ہمیں کام کرنا پڑے، کام آسان ہو جاتا ہے. لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے اس بات کو آپ تک کنوے کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا، پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. چونکہ آپ تھوڑے سے کنجوس ہیں، بولتے نہیں ہیں، اس لیے پتہ نہیں چل پاتا کہ بات پہنچ پائی یا نہیں پہنچ پائی. یہ بچوں سے کہہ رہا ہوں. بزرگ کو ایسی بات ہے، میں تو دعا چاہتا ہوں کہ حوصلہ افزائی ہے تو یہاں بیٹھ کر میرے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں کو سنتے ہیں اور حوصلہ افزائی فرما دیتے ہیں. مادیت کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتی.
रूहानियत के ऊपर। रूहानियत को तो हावी होते हुए देखा गया। मौला कायरा बाजार में जाते हुए साथ में गुलाम, एक लिबास में नजर पड़ी, उसकी कीमत मालूम की, कीमत बताई गई, जेब में देखा तो उतने पैसे नहीं थे। मादियों को रूहानियत याद रखिएगा, आपकी मीरास और मजलिस खत्म, जेब में उतने पैसे नहीं थे, कुछ ज्यादा था मगर उतने नहीं था। बराबर में एक लिबास और था, उसकी कीमत पूछी, अब जो देखा तो पैसे बराबर हो गए, मगर फर्क था। वो जो पहला लिबास था जिसकी कीमत पूछी थी वो बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया। दूसरा जो था वो नया नहीं था, पुराना था। दोनों को खरीदा, घर आया, साथ में जो गुलाम था नया लिबास उसको दे दिया, पुराना खुद रख लिया। फरमाते जाओ उसको सेवे तक करो। क्या मौला ये मैं, ये मौला, ये गुलाम, समझ रहे ना, ये कंबर है, ये तो छोटा मोटा कुछ जैसा गुलाम नहीं है, बल्कि मैं तो कंबर की खाप के बराबर में नहीं। तो गुलामी जो मौला की जिसको मिल गई वो तो गुलाम का रहता, फिर बादशाह हो जाता। तो ये कंबर है, कंबर, ना इनका ईमान कम हो रहा है, ना ये मौला की खिदमत इसलिए कर रहे हैं कि इनको मौला नए कपड़े दे देंगे, लिबास दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। ये मादियात की खातिर नहीं आए, ये तो रूहानियत को देखकर आए। तो कल जाओ उसको जगह बंद करो। तो चूंकि गुलाम था, हाथ जोड़ लिए और कह रहा मौला आप आका है, मैं गुलाम हूं, नया लिबास आप पहनिए, पुराना हमें दे दीजिए। अच्छा मिजाज तो यही है हमारा, अगर हमारे घर में कोई गुलाम होगा अपन तो दिलवाएंगे ही नहीं, अगर दिलवा भी देंगे तो फिर ऐसा ही होगा कि जो बिल्कुल नजरों से उतरा हुआ होगा, जो दिल से उतरा हुआ होगा, जो कम कीमत होगा वो गुलाम के लिए होगा, और अपने लिए वो होगा कि जो सारी दुनिया की निगाहें देखकर उस पर आश्वस्त करें। अच्छा चूंकि आप ऐसा करते नहीं है इसलिए आपको ज्यादा हैरत हो रही है, मौलाना किन लोगों की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि अव्वल तो दिलवाते ही नहीं है गुलाम को, मुलाजिम को घर में, अगर दिलवा देते तो बिल्कुल हकीर और फकीर था। तो मौला ने जिससे कहा आगे जेबे पर करो तो उसने तो वही बात की जो एक फितरत है, कहा मौला में गुलाम को आप मेरे आता है, ये नया लिबास आप पहनिए, पुराना वाला मुझे दे दीजिए। तो अली ने ये नहीं कहा मेरी जान तवज्जो रखिए, अब अली ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हें क्या मालूम, मैं तो अली हूं, मैं तो क्या बड़ा सही हूं, मैं तो इसलिए दे रहा हूं ताकि दुनिया में मेरी वापा हो जाए, ये नहीं कहा। अजीब को गरीब जवाब दिया अली ने। अली फरमाते क्या है, तुमने ये क्यों सोचा कि तू गुलाम है, क्या बोला हूं तो गुलाम, कहा है होगा गुलाम, मगर ये तो देख तू है जवान, मैं पूरा हो गया, मेरा विवाह जवान पे बचेगा। सुभान अल्लाह, सबके मोमिनीन के क्या तू जवान है, नया लिबास तुम पर बेहतर जैसा तुम रह मैं ठीक है, मैं तो बूढ़ा हो गया, लिबास लेकर चला गया। तो ये सब क्या था, देखिए जिसके लिए जन्नत से खाने आ जाए, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आ जाए, तो उसको क्या जरूरत है बाजार से खरीदने की। मगर बाजार से खरीद कर बताया कि मादियत की हैसियत क्या है और रूहानियत की हैसियत क्या है, वरना इन्हें जरूरत नहीं है, इन्हें तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और जब बाजार जाते थे तो अजीज आने मतलब ये मादियत और रूहानियत, जब ये मादियत और रूहानियत सफर करती है, सफर करती है। अच्छा एक बात और आपकी खिदमत कर दो उसके दिल में, कभी भी ये तस्वुर लेने मत लाइएगा कि जहां रूहानियत और मादियत में बुरा भला कहा जा रहा होता है, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप अच्छा लिबास न पहने, अच्छा मकान न बनाए, अच्छी गाड़ी न लें, अच्छा आपका जो भी मामलात है तो ऐसे ही मेरे पुराने कपड़े पहने, नहीं, ये दीन है, दीन। और ये मजहब नहीं है, ये दीन है, दीन। एक जुमला दीन की तारीफ आपकी खिदमत में अर्ज किया ना कि जो हर चीज को साथ लेकर चले वो दीन है, जो फर्क को पैदा कर दे वो मजहब है। हम दीन की बात कर रहे हैं, मजहब की बात नहीं कर रहे। तो दीन ने ऐसा कहा ही नहीं है कि फटा हुआ लिबास पहनो, होते हुए भी ना खा
मार दिया, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। अब आप लाख कहते रहने की जरूरत नहीं है, बात को एक उसमें समेटो, बात मिल जाएगी। इसराफ हराम है इस्लाम में, इसराफ। लेकिन इस्लाम ने कभी आपको इन चीजों के लिए मना नहीं किया कि बड़ा सा घर ना हो, कोई शिकारी ना हो, मुलाजिम ना हो और बैंक बैलेंस ना हो, जायदाद ना हो, कभी इस्लाम ने मना नहीं किया। अगर इस्लाम ने मना किया होगा तो जनाब प्राथमिक मदद लेने के लिए दरबार में क्यों करते? जाने की जरूरत ही नहीं है, बात से हो गई, जाने की जरूरत ही नहीं। दीन ने सब चीजों को यकजा किया। अलबत्ता इंसान का जैसा स्टेटस हो उसके मुताबिक उसके पास सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये इसराफ भी नहीं है, हराम भी नहीं है और इसके बारे में सवाल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसी जगह रहता हूं, ऐसे मुआशरे में रहता हूं और ऐसे लोगों में घुल मिल जाता हूं कि मुझे जरूरत नहीं है गाड़ी की, तो जब गाड़ी के मेरे पास 20 लाख हो तो अगर 4 लाख की गाड़ी भी खरीदूंगा तो यह इसराफ होगा। तो जो बताइए आपने पता नहीं, क्योंकि स्टेटस नहीं है। मतलब एक बिहार में रहता हूँ, काम में बिजली भी हो, मुझे क्या जरूरत है इसकी लंबी गाड़ी खरीदने? हाँ, छोटी गाड़ी पर भी काम चल सकता था, वहां इसराफ हो जाएगा। अब आप महसूस कर रहे हैं क्यों इसराफ हो जाएगा? इसलिए कि किसी के पास है नहीं, आपने लेकर दूसरे की तवज्जो दिला दी। और चूंकि इंसान है, नफ्स है, ख्वाहिश है, वो चाहेगा मेरे पास भी ऐसी हो। अब आपके पास तो हलाल का है, आपने खरीद लिया, जिसके पास नहीं था वो घबरा गया। अब उसने उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कभी इधर से, कभी उधर से और कभी उधर से, सब जगह से ले लिया। और अगर कहीं उसने मेरे जुमले सुन भी लिए कि इधर उधर से लेना हराम है, तो मौलवी साहब की बात को छोड़ देता है। मौला को आकर कहता, मौला आप तो जानते हैं मैं ऐसा थोड़ी हूँ, बस मजबूरी आ गई, क्या करूँ। ऐसा पता नहीं यहाँ होता है तो हमारे यहाँ तो होता है। मौला को समझाते, खुद समझने को तैयार नहीं, समझ में आने की बातें हैं, थोड़ा मुख्तलिफ बात हो गई आज, लेकिन हकीकत हाल यही है। मादियत कभी भी रूहानियत पर हावी हो ही नहीं सकते। और इस बात का मकसद कभी भी ये नहीं कि आप मत खरीदें, मत पहने, मत खाएं। देखिए इस्लाम ने सब चीजों को बराबर लिया। मासूम फरमाते हैं कि वो लोग जिनको खुदा ने अता किया है वो अपने ऊपर कर्म को उसका कर्ज समझे। अल्लाह और नहीं फरमाया, जिनको अता किया है वो कर्म को उसका कर्ज समझे। कर्म जानते, कर्म नहीं जानते आप किसको कहते हैं? हाँ? अता करना, अता करने को कर्म थोड़ी करते। अता करना कभी भी कर्म नहीं करना। कर्म जानते किसको कहते हैं? बिन मांगे अता करना, इसे कर्म कहा जाता है। मांगने के बाद जो अता करे उसको तो सखी कहा जाता है। जो बिन मांगे अता करे उसे कर्म कहा जाता है। इसलिए तो आप आइम्मा के लिए कहते हैं करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम, ये भी करीम, इनके वालिद भी करीम, उनके वालिद भी करीम, और 14 मासूमियत तक का सिलसिला सब करीम। तो जब करीम कहे तो याद रखिएगा ये बिन मांगे अता करते हैं, मांगने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो बात खत्म होने जा रही है, वक्त भी तमाम हो रहा है। आज की मजलिस इसी अंदाज में थी, कल इंशाअल्लाह अपनी अंदर को गुजारिश कर दूंगा कि कभी भी हावी नहीं होगा। और उसके साथ क्या है कि जब कर्म, जब मादियत और रूहानियत साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है का मतलब क्या? चलती है। जब ये दोनों चीजें नस्लों में मुंतकिल होती है, मीरास के तौर पर सामने आती है, तो जब ये दोनों चीजें नस्लों में मुंतकिल होती है तो इसका जो असर सामने आता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। मेरी बात को गौर से सुनेगा, तवज्जो कीजिएगा। जहां मादियत और रूहानियत है, मिसाल के तौर पर मेरी हैसियत नहीं है, मैं एक आम सा, लेकिन अगर मौला मुझे अता करते, उस पर कर्म करते कि मैं अरब खरबपति आदमी हो, तो मेरे बाप दादा तो ऐसे नहीं थे,
फरमाई आपने पता नहीं, जो हराम से आएगा उसमें रूहानियत कहाँ बाकी रह जाएगी। मसलन ही आजादार, मसलन ही आजाद खाना। अब आप ये देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम तारीफ क्या है इस अज़ा खाने की, लेकिन आप ये देख रहे हैं कितनी रौनक इस अज़ा खाने, और ये ऐसी जगह पर तो क्या जरूरत है सफारी करने की, खत्म कर दे। और जो बीमारी है नहीं, थोड़ा सा बोलिए तो सही, कुछ तो बोलिए, खत्म कर दे। लेकिन क्यों खत्म नहीं की जा रही? इसलिए कि जिन पैसों से बनी है उन पैसों में कहीं वो तस्करा ही नहीं है कि जहां ये प्यारा खत्म कर दो, आगे बढ़ो और बढ़ाओ और बढ़ाओ। इसलिए कि जहां फकत माकूलियत होती है वो जानते क्या चाहती है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। लेकिन जहां रूहानियत साथ होती है वहां और बढ़ाओ नहीं करती, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। शुक्र है खुदा का, आप बोले तो सही। एक सलाम करके मोहम्मद मसाज भी नहीं पड़ पाता कि बार बार इशारा करो, थोड़ा सा जरा नजदीक आ जाए, और उसको तो बस खत्म ही हो गई, मसाज की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा नजदीक आ जाए। भाई सलाम मोहम्मद। इसीलिए मतलब आज की मजलिस में चंद एक पैगाम सीधे साधे से आपके हवाले कर रहा हूँ, और मजलिस तमाम कर इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो तफसील से बयान करूँ। इस फर्श अज़ा की, इस मजलिस की, इस मातम की, इस गिरिये की हिफाजत आपको करनी है। अच्छा, इसलिए नहीं करनी है कि आप करेंगे तो ये होगा, नहीं। इस जिक्र को आपकी जरूरत नहीं है, आपको इस जिक्र की जरूरत है। अगर ये जिक्र बाकी है तो निशानी बाकी है, अगर ये जिक्र नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। मगर हमें हिफाजत क्यों करनी है? इसलिए कि हम वारिस हैं, ये हमारी मीरास है। ये फर्श अज़ा हो, ये मिंबर हो, ये अलम हो, ये रिवायत जो आपके यहाँ कायम है, वरना आज पौधे वगैरह करता आपके अच्छे हुआ, इसको कायम रखें, इसको ऐसे ही कायम रखें कि शायद घर में जितनी अदादारी हो रही है इसको बढ़ाए, इसको कायम रखें, इसको कायम रखें, इसको बढ़ाए। क्यों? इसलिए बढ़ाए, इसलिए बढ़ाए कि आप इसके वारिस हैं, आप इसके वारिस, आप वक्त पर आए, बच्चों को भी लेकर आए, माओ को भी लेकर आए, बहनों को भी लेकर आए। हर मजलिस में, यहाँ की बात नहीं कर रहा, हर मजलिस में जाए जहां मुमकिन है, भरपूर शिरकत करें ताकि अज़ादारी को फरोग मिले, आपकी इज्तिमाइयत सामने आए और जब हमारे अंदर जाने आए। और इसलिए भी हिफाजत करें इसकी, इसलिए कि आप इसके वारिस हैं, आप इसके वारिस हैं। और आप जानते हैं किस चीज के वारिस हैं? अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप अज़ा खाने मुस्तफा शाह के वारिस नहीं है। अब मेरी बात अगर आपकी अज़हार में आलिया में पहुंच जाए तो इजहार जरूर करवा दीजिएगा। आप अज़ा खाने मुस्तफा शाह की जो 4 मीनारी है, आप इसके वारिस नहीं है। इस 4 मीनारी के जो वारिस है वो जो है वो है, मगर इस 4 मीनारी के अंदर जो ये जन्नत का फर्श है इसके वारिस आप है। अब वो 2-3 मस्जिदें जो शुरू की थी, अब उनको रिपीट नहीं कर रहा। ये फर्श अज़ा, ये जमीन का टुकड़ा, ये 4 मीनारी का टुकड़ा नहीं है। 4 मीनारी तो हुदूद के लिए है बस, वरना ये जो टुकड़ा है जो आप बैठे हुए हैं, ये जन्नत का टुकड़ा है। जानते क्यों है? इसलिए कि ये सारा साल कहीं वैसे नहीं भूलता होगा, जब तुझे मालूम है वो सारा साल रहता भी नहीं, 10 दिन के लिए ऐसा ही है, सारा साल कहीं थोड़ी भूलता होगा। अगर आप आम दिनों में कभी आएंगे तो बंद मिलेगा, और थोड़े के अंदर आएंगे भी नहीं, आप क्या आएंगे नहीं आएंगे, नॉक करेंगे, बेल हो जाएंगे, कोई आपसे आगे पूछेगा
ये अलम मंसूब है हजरत अब्बास से। हजरत अब्बास से मंसूब का मतलब समझते हैं क्या है? हजरत अब्बास ने करबला में इमाम हुसैन का अलम नहीं बचाया, दीन का अलम था, वो दीन का अलम है, इमाम हुसैन का नहीं है, किसी खास शख्सियत, खास मकसद, खास फिक्र का नहीं है, दीन का अलम है। तो अगर ये अलम आप उठाए तो इतना याद रखकर उठाए कि ये उसकी छवि उठा रहे जो हजरत अब्बास से थामा हुआ था, हाथ बढ़ के छोड़ा नहीं था। सही है? अब हर जगह के अदब और आदाब अपने एतबार से है, मुझे नहीं मालूम, ये नहीं कहना आप अदब नहीं करते, मैं तो एक ताकीद कर रहा हूँ नौजवानों के लिए कि इसका बहुत ख्याल करें, इसका बहुत पास करें। मसलन मैंने देखा पुराना आदत से तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, एक जगह जुलूस बराबर हुआ और शायद जुलूस था या खाली बराबर की थी और ज्यादा रुके नहीं तो वापस आ गए। तो एक नौजवान में अलम थामे हुआ था और वो थक गया या क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। अलमदार थकता नहीं है, ये याद रखिएगा, अलमदार थकता नहीं है। बड़े शहरों में जाकर आप देखें तो बड़े बड़े अलम तो भारी भारी अलम एक ही उल्टा उठाता है। सही है? जब उठाए बावजूद होकर उठाए, जब उठाए रोकर उठाए, जब उठाए बांध कर उठाए, जब रख दे फिर भी मांगे, हम तो नहीं मांगने की, इनसे भी मांगने तो क्या लोगों से मांगे, इन्हीं से तो मांगे मांगे। अगर अगले आदमी होता, मैंने उसको देखा क्या था मसला मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने अपने पैर के ऊपर उस छड़ को रख दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं मालूम कि क्या शायद ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगा कि अलग हजरत अब्बास तो आप जो है वो पैर पर रखते, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक पटका बांधते उसके अंदर रखते, झोली बनाए उसके अंदर रखते, पैर पर मत रखते। और रख रहे थे तो ये मत कहें कि हजरत अब्बास का लगा, क्योंकि अजीज होता है कभी हम चूमते हैं कभी पैर पर रखते हैं, समझ में नहीं आता। अकीदत से बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो बस ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं। दूसरी बात क्या है, माजरत के साथ ये बातें कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। दूसरी बात एक और खिदमत पेश कर दूं और बस मजलिस खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेरे पास मुश्किल से 5 मिनट बचे, उसी में मसाइल बयान करूंगा और मजलिस खत्म हो जाएगी। और वो क्या है कि ये मजलिस खत्म भी हो रही है, सही है? अभी ताबूत बरामद होगा, आप ध्यान करें। ये अच्छा आपके यानी ये हर जगह है कि मातमी हजरात आते हैं, जबड़े आती है और हमको सलामत रखें और हम जवानों को सलामत रखें और खाने को सलामत रखें। लेकिन ये मैं पहली माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि आप आते हैं, आए, जाते हैं, जाए, ड्यूटी आ रही किसी भरपूर अंजाम, लेकिन अगर आ ही गए हैं तो यहां तक क्यों नहीं आ रहे? कोई मसला है, कोई परेशानी है तो आपको निकाल देगा बाहर, क्या होगा? भाई देखिए जो आप कर रहे हैं वही हम अंदर कर रहे हैं, सही है? आप भी फजाइल जो है पढ़ते हैं तो फसाइल भी पढ़ते हैं, वह सिलसिला अलग है। मातमदारी का और खानी का जो मिजाज है अलग है। यहाँ अभी मैं मसाइल पढ़ूंगा तो आप कमीजन डाल के मातम नहीं करेंगे उसमें, जबकि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अभी वो नहीं पढ़ेगा, बस मैं उसको नजर में पढ़ रहा हूँ, वो उसको तरन्नुम में पढ़ेगा, बस इसीलिए तो पढ़ गए। तो क्या मसला है वहां से यहाँ आने? इसलिए कि जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात की खुद गवाही देंगे, जो मैंने थोड़ी सी मालूमात की कि एक वक्त ऐसा गुजरा कि पैर रखने की जगह नहीं होती, चाहे मातम नारी हो चाहे मजलिस ज्यादा हो, पैर रखने की जगह। अभी क्या तकसीम हो गए, अब बस कह रहे हैं इतना ही कर लिया काफी है, नहीं ऐसा मत करे। क्यों मत करे? मैं इसलिए आपकी जो बात कर रहा हूँ, और अगर बुरा लग जाए किसी को तो मुझे माफ कर सही है, लोगों के एतबार से माफ कर दीजिएगा और आने की बात तो छोड़ दें। आपका अकीदा है फर्श में बीबी आती है, फर्श पर आती है या वहां भी आती है? फर्श पर आती है। इसी फर्श पर चौधरी इमाम भी आते हैं, इसी फर्श पर बीबी भी आती है शाम से, तो बच्ची भी आती है शाम से। ये आपका अकीदा है, और सिर्फ अकीदा ऐसी हवाइयों वाला अकीदा नहीं है, ये हमारा अकीदा है, सबका अकीदा। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो लोग इल्म से, आलिम से, जाकिर से मोहब्बत करने वाले, तो अगर वहां सब कमरे में तो आते ना, वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना उनको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, किबला खैरियत से कहा से बहुत सलाम चलेगा। क्यों कि वो ये कहते हैं, वो समझते हैं कि हमें तकलीफ मिल रही है,
کو دیکھا, ایک ذاکر کو دیکھا تو ہمیں تقویت ملتی ہے, تقویت ملتی ہے. مومن مومن کی زیارت کرتا ہے تو اس کو بھی تقویت ملتی ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, عالم اللہ ذاکر اللہ قدیم ہوں. لوگ ایسا کہتے ہیں تقویت ملی. ایک عام مومن کو دیکھ کر تو تقویت مل رہی ہے. اگر اس فرش پر آ کر بیٹھ گئے کہ جہاں سید الساجدین بیٹھے ہیں تو تقویت کا عالم کیا بات کو اندازہ ہے معذرت کے ساتھ. تو اگر آ ہی گئے ہیں تو یہاں تک کیوں نہیں آیا, اندر بھی آیا. اور اگر ماتم ہو رہا ہے تو آپ بھی باہر کیوں چلے گئے, کیا 1 گھنٹہ بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر اور بیٹھ گئے. تو یہ 2-4 گزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی, اس سے زیادہ اور کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا. اس روایت کو, اس عذاب خانے کو, اس فرش عذاب سارے عذاب خانوں کو مولا سلامت رکھے. ان عذاب خانوں کو, رضاداروں کو مولا نظر بد سے بچائے. مولا عذاب خانوں کو, رضاداروں کو دشمنوں کے شر سے بچائے. مولا ہر عذاب خانے کو اس کی رونقوں کے ساتھ شاد اور آباد فرمائے. مولا جوانوں کی جوانی کو سلامت فرمائے. بس عزیز و تقریب ختم ہو گئے. آج 7 محرم ہے. آپ کے یہاں روایت ہے کہ آج کی تاریخ میں شہزادے کا تابوت اٹھایا جاتا ہے. صحیح. اور یہ شہزادہ کون ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. یہ وہ شہزادہ ہے, یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا تو چہرے پر نقاب لگا کے چلتا تھا. جوانوں کی بات بتا, وہ کیا کرتے تھے, چہرے پر نقاب لگانے. تو روایت بتاتی ہے کہ جب علی اکبر اور حضرت عباس, ان دونوں کے لیے خصوصیت سے میں نے پڑھا کہ جب یہ دونوں جوان مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو نقاب لگا. لوگ جو وہ قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے تھے دیکھنا یہ کون ہے, بھائی کون ہے. کہ یہ جو دائیں جانب میں یہ قمر بنی ہاشم ہے, بائیں جانب کا جو بائیں جانب ہے یہ حسین کا علی اکبر ہے. اب جس کو دیکھنے کے لیے مدینے کے لوگ منتظر ہیں تو اندازہ کیجیے وہ کتنا حسین ہوگا. جو لوگوں کے لیے اتنا حسین تھا, اللہ جانے وہ ماں کے لیے نہ جانے کیا تھا. جو لوگوں کے لیے اتنا حسین تھا, اللہ جانے وہ باپ کے لیے کیا مقام رکھتا ہوگا. علماء جب جناب علی اکبر کے مسائل کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں کربلا کا پہلا شہید ہے علی اکبر, جسے قتل کرنے والے قتل کر کے بھی رو پڑے. نیزہ مارنے والا نیزہ مار کر روتا, برچھی مارنے والا برچھی مار کر روتا, تلوار چلانے والا تلوار چلا کر روتا. یہ پہلا جواب, پہلا شہید. حسن کا عالم کیا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں. حسن کا عالم یہ ہے کہ ہم شکل پیغمبر ہیں, اور صرف ہم شکل پیغمبر نہیں ہے, لہجہ بھی پیغمبر کا ہے, صورت بھی پیغمبر کی ہے, سیرت بھی پیغمبر کی ہے. کہ میں نے نہیں کہا, یہ تو تاریخ نے کہا کہ صبح عاشور جب آزاد کا وقت ہوا تو مسروق کو نہیں بلایا, جو مؤذن اس کو نہیں بلایا, بلکہ حسین نے کہا میرا علی اکبر کہاں ہے. علی اکبر کو بولا حاضر ہو کا بابا, علی اکبر دل چاہتا ہے آزاد آپ کا ہے. علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی, کبھی موقع ملے گا تو اس طرف اشارہ کروں گا. کہ علی اکبر سے آزاد کیوں دلوائی. تو علامہ نقل نے ایک جملہ کہا کہ لگے اسی لیے دلوائی تاکہ لوگوں کو لہجہ رسول سن کر شاید حیا آ جائے, شاید شرم آ جائے کہ اس کو کیسے مارے جس کا لہجہ رسول کا لہجہ ہو. آپ جب اس کا احترام کرتے جو چیز رسول سے منسوب ہو جائے, اس کی رگوں میں تو حسین کا رسول کا خون دوڑتا ہے. یہ تو بجاہت میں شفاعت میں سب چیزوں میں رسول کا وارث ہے. یہ حسن کا عالم. زیادہ مطلب نہیں پڑھ پاؤں گا, لیکن جانتے ہیں کیا ہوا. ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چل رہا تھا کربلا کے بعد, مجھے کہا تو گیا شہزادے کی شہادت پڑھیے گا. میں نہیں پڑھ پاؤں گا, پہلے بتا
शहजादे की शहादत नहीं पढ़ो, ना ताकत है ना कलेजे में दर्द। लेकिन जब काफिला चला, ये रिवाज सुनिएगा और महसूस कीजिएगा अल्फाज। जब काफिला चला तो लहजों पर फर्क भी कहता है कि जो शाम की औरतें थी जो बैठी हुई थी, उन सरों को देख रही थी और लहजे गुजरते जा रहे, हर सर को देखती थी। का एक मरतबा जब अली अकबर के सर पर निगाह पड़ी, चेहरे पर निगाह पड़ी, तो शाम की एक रहने वाली थी, बस उसकी निगाह अली अकबर के चेहरे पर ही रुक गई। और जैसे ही सर बिल्कुल वो नेज़ा शाम की रहने वाले के करीब आया, तो इसने झोली को फैला और फैलाकर कहने लगी, परवरदिगार काश इस जवान की मां मर गई। तो एक नाके से आवाज आई, इस शाम की रहने वाली, इसकी मां ने तेरा क्या बुलाया? तो इसकी मां को बद्दुआ क्यों देती? क्या बद्दुआ नहीं दे रहे? मैं तो फकत ये कहना चाहती हूँ कि परवरदिगार जो मुझे चांद लग रहा है, अब ना जाने वो मां के लिए क्या होगा, मां ने कैसे देखा होगा। तो नाके से आवाज आई, ऐ शाम की रहने वाली, तूने अली अकबर को देखा, तुझसे रहा नहीं गया। मैंने इसके सीने में मिर्ची का फल देखा है, मैंने इसके कटे हुए गले को देखा है, और तूने फकत यहाँ देखा है। आए मैं करबला से चली हूँ और ये सर ऐसे ही सवार है, करबला से तूफा आ गई, तूफा से शाम आ गया, मगर मेरे बेटे का सर इसी तरह लेके ले जाता। अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज बुलंद हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, मजलिस समझ से खत्म हो गई। मेरे सर में जुमल तबर्रुकन है, एक मरतबा मदीने से चले, मदीने से चले, और अब जो मदीने से चले तो मुख्तलिफ मंजिल तय करते हुए करबला आ गए। जब करबला के करीब है काफिला, तो एक मरतबा जानते हैं क्या हुआ? हवा चली, मट्टी उड़ी, अली अकबर आए अपने बाबा के पास। कब बाबा, हम किस सिमत में जा रहे हैं? क्या क्यों मेरे लाल क्या हुआ? कब बाबा, जब हवा चलती है, इस हवा में से बाबा आपके खून की खुशबू आती है, मेरा दिल बहल जाता है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि कब कहां जा रहा? तो हुसैन ने पूछा, बेटा क्या मौत से घबराते हो? तो तारीखी जुमला है ये, अली अकबर ने अपने दादा का जुमला कहा, क्या बाबा मेरा नाम अली इब्न हुसैन है, मुझे मौत की परवाह नहीं है, मुझे परवाह ही नहीं है, मौत अली अकबर पर आए या अली अकबर मौत पर गिर जाए, मुझे डर नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूँ जा कहाँ है। हुसैन ने आहिस्ता से कहा, बेटा करबला, नाम करबला आ गया और करबला काफिला पहुंच गया। 2 मुहर्रम को काफिला करबला पहुंचा, जहमत तमाम कर दिया। 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 8 मुहर्रम का दिन गुजरा, 9 मुहर्रम का दिन गुजरा, और ये 2 दिन गुजरने के बाद एक मरतबा आशूर की शब आ गई। आशूर की शब अली अकबर ने आजाद कही, आजाद अली अकबर, कभी मौका मिलेगा तफसील से उसके जो मसाइल में सुनाऊंगा। लेकिन जैसे ही शहजादे ने गुलदस्ते पर आकर कहा अल्लाह अकबर, तो जानते हैं क्या हुआ? हुसैन करीब आकर कहने के बेटे जरा बुलंद आवाज से तो आजाद कहो। का बाबा क्यों, क्या हुआ? का इसलिए कि खैमों में मेरी बहनों को आवाज नहीं जा रही। तो अली अकबर ने तरफ से कहा, बाबा आपका हुक्म है, मैं तामीर करूंगा, लेकिन बाबा यहां करबला में आपकी बहनें मेरी आवाज सुन ले। बाबा मैं भी तो एक बहन को छोड़कर आया था, बाबा क्या मेरी बहन आवाज नहीं सुनेगी? क्या मैं इमाम हूं वक्त का? तुम आजाद करो, मैं हवा को हुक्म दो कि हवा तुम्हारी आवाज को लेकर जाएगी, लेकर जाए। अली अकबर ने आजाद कही, सुहरा के कानों में अल्लाह अकबर की सदा है। आज मैं साहब में ऐसी ही आवाज में पढ़ पाऊंगा, आवाज आई कानों में, उठे खड़ी हो गई घबरा कर। और एक मरतबा जब उठी तो उन्हें सलमा देख गई, बीमार है। पूछा क्या हुआ? अब उस कैफियत को मैं बयान नहीं कर सकता। का क्या हुआ? का नानी मेरे भैया आया,
کہ تجھ سے کس نے کہا کہ میں نے ابھی خود کانوں میں سنا ہے، میں نے اپنے بھیا کی آواز کو سنا ہے، مجھے لگتا ہے میرا بابا مدینے کے کہیں قریب آ گیا، اس لیے کہ میں نے ابھی سنا میرا بھیا اللہ اکبر کی صدا دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار نے ایسا کو اٹھایا، نانی کو لے کر گھر سے چلے، آواز کا تعاقب کیا، مگر ایک مرتبہ بیٹھ کر کہنے لگی نانی فقط آواز آئی ہے، میرا بھیا واپس نہیں آیا۔ اجروں کو مدد کرانے والوں آزاد ہو گئی، صبح کا دن ہو گیا، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہے اس کو یاد رکھیے گا، اگر ممکن ہو رہا ہے بجائی رہے تو یہ بھی بجا دیجیے، تو یہ سر پہ چل رہی ہے۔ شہادتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، ایک جملہ کہہ رہا ہے اس کو یاد رکھیے گا، اگر مسائل کے وقت آپ اس جملے کو چھوڑ پائے تو انشاءاللہ گریا بہت ہوگا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اب تو اندھیرا بھی ہو گیا، اب تو شرمائیے گا بھی نہیں، اب گھبرائیے گا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ جوان کا ماتم ہے، یہ اس جوان کا ماتم ہے جس کے لیے رواج سنا چکا ہوا کہ عالم نے بیٹے سے کہا حسین کے مزار پہ جا کر کبھی یہ مت کہنا کہ بوڑھا باپ تھا اور جوان بیٹا تھا، اس لیے کہ حسین آج بھی یہ برداشت نہیں کر پاتے۔ بولنے والوں آمادہ ہو جائیے، زیادہ نہیں کروں گا، تابوت باہر آ گیا، زیادہ نہیں کروں گا، مرنے کے التجا ضرور کروں گا، مجھے کچھ پڑھنے دیجیے گا، پھر سے ہاتھ کو لے آئیے گا۔ بولنے والوں ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جب بنی ہاشم کے جوان جاتے تھے اور اس سے پہلے اصحاب گئے، اصحاب کی لاشیں حسین خود اٹھا کر نہیں لائے، لاشیں اٹھوائے ہیں، مگر جب بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں تو حسین نے لاشیں اٹھوائے نہیں ہیں بلکہ خود لاشیں اٹھائے ہیں، اور جب خود لاشیں اٹھائے ہیں تو جانتے ہیں کیسے لاشیں اٹھائے؟ علامہ نقم کہتے ہیں کہ جب کسی بنی ہاشم کے جوان کے لاشیں پہ جاتے تھے تو لاشیں کو ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور پوچھتے سے جگہ پر آ کر بیٹھتے تھے اور ایسے ہی ہاتھ کو بول دیتے تھے اور وہاں سے چلتے تھے رہنے تک آتے تھے۔ اللہ اکبر! آئے جو بنی ہاشم کے ڈھال لاشیں ایک ہاتھ پر اٹھا کر لے آیا، جوانی اکبر کے لاشیں پر آیا، ہائے حسین! ابھی تو آپ کرتے ہیں گریے میں شرمائیے گا نہیں، خدا کی قسم، پھر خصوص جوانوں سے کہہ رہا ہوں آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا، ہائے ضرور کرنا۔ بولے والوں ایک مرتبہ دل چہکتا چلا گیا، جوان آ کر کہنے لگا بابا مجھے اجازت دے دیجیے۔ اب کیسے حسین اجازت دے؟ دیکھا حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اچھا اگر تم جانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، یہ مسلسل تکرار کے بعد روایتیں چھوڑ دی کہ بابا کیا کہ اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا، اگر وہ اجازت دے دے گی تو میں بھی اجازت دے دوں۔ جیسے ہی شہزادہ خیمے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا ماں مصلی عبادت پر بیٹھی تھی، علی اکبر کھڑے ہو گئے، ماں نے توجہ کی میرے یاد خیریت کہ ماں میں نے بابا سے اجازت مانگی ہے، تو بابا نے کہا ماں سے اجازت لے۔ تو جانتے لیلا کا جملہ کیا تھا؟ جناب لیلا نے جملہ کہا شہزادے میرے تو مسلح بچھاوا ہی اس لیے ہے کہ کب میرے کانوں میں صدا آئے گی اور کب میں شکر کا سجدہ کروں گی، میرے ساتھ میری طرف سے اجازت ہے، اس لیے کہ میں فاطمہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر! اب جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے باہر آئے حسین کے پاس، کہ بابا وہاں سے اجازت لینی میں جاؤں؟ تو جانتے حسین نے کیا کہا لیا کیا؟ یہ تو تم نے اس سے اجازت لی ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، میں تو اس ماں سے کہہ رہا ہوں جس نے تجھے 18 برس کا عمر جوان کیا ہے۔ پوچھ کر آجا، نقم صاحب کہتے ہیں علی اکبر کے لیے 9 لاکھ کے لشکر سے لڑنا آسان تھا، علی
को उठाया, उठ के खड़ी हो गई और खड़ी होकर कहने लगी, अरे अकबर ये तूने क्या कह दिया? अरे कहाँ फातिमा ज़हरा और कहाँ मैं ज़ैनब? अरे फातिमा के बच्चों पर मेरे बच्चे कुर्बान। कहा तो अम्मा मैं बात बताओ, क्या मुझे मरने की इजाजत दोगी हुसैन पर? इतना सुना तो खामोश हो गए और ये खामोश होकर कहने लगी, मेरे लिए अकबर मैं कैसे रोकूं तुझे?
आखिरी जुमला में बड़े आराम से कह रहा उसने कि जुमले के ताकत कलेजा चाहिए, मगर आपने महसूस किया तो मेरे बहुत होगा। रावी कहता है कि हर कोई तो हमला कर रहा था और अली अकबर दिफा भी कर रहे थे, जख्म भी खा रहे थे। एक मलऊन ऐसा था, उसने हाथ में के नेजा उठाया और नेजा उठाकर एक जगह छुपकर बैठ गया और बस इंतजार में है कि कब अली अकबर का रुख इसकी तरफ हो, ये यहां से नेजा चला। रोने वालों में घड़ी आ गई, तो घड़ी आ गई। अली अकबर के घोड़े का रुख हुआ कि इसको जवान का सीना लगा, यहां से नेजा चला। अली अकबर के सीने में उतरा। हाय हुसैन, हाय हुसैन, सीने में नेजा उतरा। अली अकबर का है क्या? अली अकबर कर रहे हैं और करबला की जमीन हिलने लगी। बोले आओ, फिर क्या था? जवान से समझा ही नहीं गया, जवान घोड़े से जमीन की तरफ आया और जानते जब आया तो क्या कहता हुआ, या अबता हो हजरे गिरी, बाबा मेरी मदद करने के लिए। अल्लाह मदद कर कहते हैं, जब कोई गिरने वाला पुकारता था, बिजली की तेजी की तरह जाते थे। जब जवान ने पुकारा, उठे चला नहीं गया, गोलियां से लोग उठाते थे। रोने वाले एक मिनट रुकेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? किसी ने चौथे इमाम से पूछा, बोला ये करबला में लश्कर हंसता क्यों था? तड़प गए, क्या तुमने क्या बात क्या गिरा दी? क्या सुनेगा क्यों हंसते थे? कहा कि जब मेरा बाबा कोहनियों से खाक हटाता था, एक जुमला कहने की हिम्मत नहीं रहता हूँ, कोहनियों से खाक हटाता था। मुझे इमाम हुसैन अली अकबर की गुफ्तगू सुनाने थे, फिर दामद ले आइएगा। एक मरतबा मौला कहते जब मेरा बाबा कोहनियों से खाक हटा रहा था और कह रहा था मेरे लाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, चला गया तो पिछले साथ का लश्कर देखकर मेरे बाबा ने कहा मुझे अकबर दिखाई नहीं दे रहा, बता दो तो पिछले साथ का लश्कर हंस के कहता था हुसैन की मीरार की चलती है। करीब से आवाज बाबा, बाबा, आप मुझे करबला गया देख के आया, कहाँ बताओ मेरी अकबर चले गया, खुदा करे से पहुंच जाएगा, एहसास कीजिएगा कहाँ खयाम है, कहाँ वो मकाम है। अल्लाह जाने साहब का कैसे आया। जब आ गया तो एक मरतबा जवान को उठाना चाहा, कहा मेरे लाल मैं चाहता हूं कि तुझे खाने में ले जाऊं। जवान ने कहा बाबा नहीं चले। एक हाथ गर्दन में डाला, हुसैन को मांगे दूसरा हाथ को डालो, का बाबा दूसरा हाथ हटाओ वाले, का बाबा दूसरा हाथ नहीं रख पाऊंगा। क्यों? अब जो देखा तो नेजा तो निकल गया था, नेजे की हड्डी टूटी हुई जिगर में थी। हुसैन इससे ज्यादा प्यार क्या हो गया? हुसैन ने सुना तो कहा मिटा दिया खाके करबला, कहा मेरे लाल हाथ को जरा हटा। अली अकबर खामोश, फिर कहा बेटा हाथ को हटा। अली अकबर खामोश है। जानते तीसरा जुमला हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा अली अकबर तेरा बाबा बड़ा साबिर है, तो सीने से हाथ को हटा। जवान धीरे धीरे हाथ हटा रहा था और कहता जा रहा था बाबा जिसने ये नेजा मारा है वो मार कर कहता था मैंने सुना हुसैन बड़े साबिर है। हाथ हटा। हुसैन ने आस्तीनों को चढ़ाया, एक जान हाथ पर, एक जान जवान के
بے